everyone, welcome to Magnetic Learning. Today in the series of force and laws of motion, we'll study about momentum. And the momentum is represented by the letter P, most probably P upon arrow mark. And why this arrow mark is there, I think you know, because momentum is a vector quantity. If you don't know what is scalar and what is vector, I can make a small video about this for class 9th and 10th just to understand the concept of scalar and vector. So what is momentum? The topic for today is momentum. So I think you should focus on momentum. So what is momentum? Product of mass and velocity is called momentum. I think all of you know what is mass. Mass is the amount of substance present in a body, that is called mass. And velocity, I think you know, rate of change of displacement is called velocity. So I can write simply the momentum P is equal to m into v. Okay, momentum is equal to mass into velocity. When you multiply mass and velocity, you got momentum. The quantity which you got after multiplying mass and velocity is called momentum. ये जो डेफिनेशन है ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, ये आपको मोमेंटम की अमाउंट बता सकता है. मोमेंटम की और भी एक डेफिनेशन है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. मतलब किसी भी फोर्स में जो इफेक्ट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. जैसे मान लिया मैंने आपको पत्थर मारा, पत्थर मारने से आपको कुछ इफेक्ट फील हुआ पत्थर का, वो फोर्स का, तो जितना इफेक्ट है उसमें, जितना इफेक्ट उस पत्थर में प्रेजेंट है जो आपको हर्ट करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंटम. So we can say the product of mass and velocity is called momentum, or we can say effect of force present in a body is called momentum. And in formula we should write P is equal to mv, because momentum is equal to mass into velocity. That we can also write momentum is equal to mass into velocity. Okay, momentum is nothing but it is mass into velocity. So now coming to the unit of momentum. So unit of momentum, mass का unit आपको सबको पता है, it is kg, and velocity का unit है meter per second. Simply unit of momentum is nothing but kg into meter per second. Okay, so unit of momentum is nothing but it is simply kg into meter per second. That is the unit of momentum. Basically in very simple words, momentum is nothing, momentum is equal to mass into velocity. So now I will be giving physical significance, how you will understand what is momentum. I can give you simple two examples which will simply make you relate to what is momentum is. देखो momentum क्या होता है, किसी भी फोर्स में जो इफेक्ट प्रेजेंट होता है, जो फोर्स का जो पावर यू कैन से, जो फोर्स का जो इफेक्ट होता है, दैट इज द मोमेंटम. तो सिंपली मान लो मुझे किसी को अटैक करना है, मुझे किसी को हर्ट करना है, किसी पे इफेक्ट करना है. सो आई हैव टू ऑप्शन. आई कैन टेक ए लार्ज स्टोन. समझ रहे हो ना, जब मैं बात करती हूँ लार्ज स्टोन मतलब क्या होता है, इसका मास ज़्यादा है, मास इज मोर, बड़ा सा स्टोन है, और मैं उसको अप्लाई करूँगी बट विथ लेस वेलोसिटी. लेस वेलोसिटी में मैंने उस पर पत्थर फेंका, अगर वो पत्थर उस पर लग जाता है, उसको चोट लगता है, उसको जो इफेक्ट होता है, दैट वी कैन से दिस द मोमेंटम इज अफेक्टिंग द बॉडी. दिस इज द फर्स्ट मेथड. इन सेकेंड मेथड व्हाट विल डू, मान लो पत्थर उसको लगा नहीं, वो बच गया, कोई भी हो सकता है. तो सेकेंड मेथड में मैं क्या करूँगी, आई विल टेक ए स्मॉल बुलेट. वेरी, सबको पता है बुलेट का मास बहुत ही कम होता है. आई विल टेक ए बुलेट विच इज हैविंग वेरी स्मॉल मास, बट आई अप्लाई इट विथ वेरी हाई वेलोसिटी. सबको पता है बुलेट का जो वेलोसिटी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट वो मूव करता है. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एक बड़ा सा स्टोन को लेस वेलोसिटी में अप्लाई करूँ, या एक छोटा सा बुलेट को बहुत ही हाई वेलोसिटी में अप्लाई करूँ. दोनों के केस में मोमेंटम ज़्यादा है, इसीलिए आइदर बुलेट और पत्थर अगर किसी को लग गया, अब पता है आपके उसके बाद क्या होगा. प्लीज़ ये एक्सपेरिमेंट करना नहीं, बोलना कि नहीं दिव्या मैम बोले थे ये मोमेंटम का एक्सपेरिमेंट है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. नो नो, डोंट डू इट. ओके, सो किसी भी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आइदर आप उसका मास को बढ़ा सकते हो, नहीं तो वेलोसिटी. दोनों के केस में बॉडी का मोमेंटम बढ़ जाएगा. तो बेस्ट एग्जाम्पल विच आई हैव जस्ट टोल्ड राइट नाउ, ए लार्ज स्टोन हैविंग स्मॉल मास and a small bullet with very high velocity, both can do some effective work because their momentum is large, because एक में मास ज़्यादा है और एक में वेलोसिटी ज़्यादा है.
तो ये आपको एक बहुत ही कंक्रीट बेसिक सा आइडिया ही प्रोवाइड करेगा व्हाट इज मोमेंटम एग्जैक्टली। एंड मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर P, and momentum is a vector quantity and it is having a direction, and the direction of momentum is similar to the velocity. जिस भी डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है।